بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو سبھی جانتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ تاریخ کے ایک ایسے مشہور پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں میں یعنی عیسائی اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی خوب فالو کیا جاتا ہے۔ یعنی تینوں ہی مذہبوں کے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر جہاں ایک طرف مسلمان ان کو موسیٰ کہہ کر پکارتے ہیں، وہیں دوسری طرف عیسائی اور یہودی لوگ ان کو موسیز کے نام سے جانتے ہیں۔ دوستو انہی پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہماری دنیا میں بلعام بن باعورہ نام کا ایک انسان رہا کرتا تھا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا کہ جو نہ صرف بہت بڑا عالم تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ بہت زیادہ نیک بھی تھا، کیونکہ یہ زیادہ تر وقت خدا کی عبادت ہی میں گزارا کرتا تھا۔ مورخین کی مانے تو یہ انسان اپنے پاس موجود حد سے زیادہ نالج کی وجہ سے ہی اس دور میں دور دور تک خوب مشہور تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے شاگرد یعنی اس کے سٹوڈنٹ کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی۔ ہسٹورین کے مطابق یہ انسان اپنے جو کلاس لگایا کرتا تھا، اس کی کلاس میں صرف استادوں کی تعداد بھی 12,000 کے قریب تھی۔ اب ظاہر ہے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے پاس پڑھنے والے لوگ کتنے زیادہ تھے۔ دوستو اس تاریخی انسان کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اسم اعظم سے واقف تھا، یعنی خدا کی طرف سے اس کو ایسا گفٹ ملا ہوا تھا کہ یہ انسان اپنی زبان سے جو بھی دعا کر دیا کرتا تھا تو فوراً قبول ہو جایا کرتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس انسان کا نام تاریخ کی نہ صرف بہت ساری چھوٹی بڑی کتابوں میں موجود ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اسلام مذہب کی سب سے عظیم یعنی مقدس کتاب قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ میرے ذہین دوستو، پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو پانی میں ڈبو کر ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ مصر میں رہنے والی اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کے لشکر کو لے کر جبارین نام کے ایک قوم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکل پڑے۔ دوسری طرف جب بلعام بن باعورہ کی قوم کو اس بارے میں خبر ملی تو ان کو اپنے بارے میں بے خطرہ ستانے لگا۔ وہ فوراً بلعام کے پاس پہنچے اور اس سے کہا کہ جیسا کہ تم بھی جانتے ہو کہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری فوج لے کر نکل پڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی فوج حد سے زیادہ طاقتور ہے، اسی لیے اس سے پہلے کہ وہ ہم پر حملہ کرے اور ہم کو ہرا کر ہمارے علاقوں سے نکال دے، تم پہلے ہی ان کے خلاف بددعا کر دو، یعنی ان کے خلاف کوئی ایسی بری دعا کر دو تاکہ وہ جنگ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو کر واپس ہو جائیں۔ اور ظاہر ہے ہم سب یہ جانتے ہیں کہ تمہاری دعا تو ہمیشہ ہی قبول ہوتی ہے۔ مگر دوستو بلعام بن باعورہ کے جو حد سے زیادہ نیک اور ناجیل بندہ تھا، وہ اپنی نالج کی وجہ سے جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون ہیں، یعنی ان کی کیا اہمیت ہے اور وہ کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اس نے فوراً اپنی قوم کو ایسا کرنے سے منع کر دیا اور اس نے کہا میں کسی بھی کنڈیشن میں حضرت موسیٰ کے خلاف کوئی بری دعا نہیں کروں گا۔ بلعام بن باعورہ کے انکار کرنے کے بعد اب اس کی قوم نے دوسرا طریقہ ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بلعام بن باعورہ کی حد سے زیادہ کم عمر اور خوبصورت بیوی ہوا کرتی تھی، جس سے وہ حد سے زیادہ نہ صرف محبت کیا کرتا تھا بلکہ اس کے سارے ناز و نخروں کو بھی اٹھایا کرتا تھا۔ اس کی قوم فوراً بلعام بن باعورہ کی اسی بیوی کے پاس پہنچی۔ بلعام بن باعورہ کی قوم نے اس کی بیوی کو بڑے بڑے قیمتی تحفے دیے اور آخر کار اس کو اس بات پر منا لیا کہ اس کا شوہر یعنی بلعام بن باعورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی بری دعا کرے گا، لہٰذا اپنی قوم یعنی بستی والوں سے کیے گئے وعدے کے مطابق بلعام بن باعورہ کی یہ کم عمر اور خوبصورت بیوی فوراً اپنے شوہر کے پاس پہنچی اور اس کو اس بات پر مجبور کرنے لگی کہ وہ جلد سے جلد پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بددعا یعنی کوئی بری دعا کر دیں تاکہ وہ حملہ کرنے سے پہلے ہی برباد ہو جائے۔ مگر دوستو بلعام بن باعورہ نے اپنی بیوی کی بھی بات نہ مانی اور اس کو بھی ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ مگر بلعام بن باعورہ کی بیوی بھی اتنی آسانی سے کیسے مان سکتی تھی، کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی اپنی بستی والوں سے وعدہ کر چکی تھی۔
बिलाम बिन बावरा की बीवी ने आहिस्ता आहिस्ता जिद करना शुरू कर दी और आखिरकार अपने शोहर बिलम को अपनी मोहब्बत और अदाओं के जाल में ऐसा फंसा लिया कि वो ये बात मानने पर राजी हो गया कि वो पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करेगा, क्योंकि जाहिर है बिलाम अपनी बीवी से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था और इसकी बीवी इसको पहले ही ऐसा ना करने पर इससे अलग होने की धमकी दे चुकी थी। अपनी बीवी की जिद पूरी करने के लिए बिलम बिन बावरा अपनी गधी पर बैठकर एक पहाड़ की तरफ निकल पड़ा, जहां पर खड़े होकर इसको पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ करनी थी। रास्ते में जगह जगह पर बिलम बिन बावरा की गधी रुक जाया करती थी और अपनी गर्दन को पीछे मोड़कर वापस लौटने की कोशिश किया करती थी, मगर बिलम बिन बावरा बार बार इसकी पिटाई करके इसको सीधा चलने पर मजबूर करता रहा। इस्लामी तारीख की बड़ी बड़ी किताबों में ये मौजूद है कि जब बिलम बिन बावरा बार बार अपनी गधी को मार मार कर सीधा चलने पर मजबूर करता रहा तो अचानक से इस गधी ने बोलना शुरू कर दिया। उसकी गधी ने कहा कि मेरे आगे फरिश्ते मौजूद हैं कि जो ना सिर्फ मेरा रास्ता रोक रहे हैं बल्कि बार बार मुझको वापस पलट जाने पर भी मजबूर कर रहे हैं। मगर ए बिलम, तेरा बुरा हो कि जो तू खुदा के पैगंबर यानी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम पर बद्दुआ करने के लिए जा रहा है। अपनी गधी से ये सब कुछ सुनने के बावजूद भी बिलम बिन बावरा वापस नहीं पलटा और बड़ी तेजी के साथ इस पहाड़ की तरफ चलता गया और आखिरकार इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद उसने जब नीचे पलट कर देखा तो उसको दूर से पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फौज आती हुई दिखाई दी। उन सब को देखकर बिलम बिन बावरा ने उनके लिए बद्दुआ यानी बुरी दुआएं मांगना शुरू कर दी। मगर अफसोस, जब भी बिलम पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के खिलाफ बद्दुआ करने की कोशिश करता तो उसके मुंह से पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की बजाय अपनी कौम के खिलाफ बद्दुआ निकलना शुरू हो जाती। ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बिलम ने रुकने की बजाय अपनी ये कोशिश जारी रखी और आखिरकार अचानक से इसी कोशिश के बीच में ही इसके ऊपर खुदा का अजाब आ गया और उसकी जबान के जो दूसरे इंसानों की तरह इसके मुंह के अंदर ही हुआ करती थी वो और ज्यादा खींचकर इसके सीने तक लटक गई। ये देखकर बिलम बिन बावरा ना सिर्फ घबरा गया बल्कि जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और रोते हुए अपनी कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम वालों, तुमने मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर दी। अब मेरी कोई भी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि जाहिर है मेरा खुदा मुझसे नाराज हो चुका है। मगर दोस्तों, हिस्टोरियन के मुताबिक ये सब कुछ हो जाने के बावजूद भी बिलम बिन बावरा अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था और उसने इन तमाम चीज़ों के बाद भी अपनी कौम को एक मशवरा दिया था और कहा था कि अगर तुम लोग ऐसा करो तो अभी भी पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी फौज बर्बाद हो सकती है। इसका मशवरा ये था कि तुम लोग हजारों खूबसूरत लड़कियों को खूबसूरत कपड़े पहनाकर खुफिया तौर पर पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फौज में शामिल कर दो। अगर इनमें से किसी भी एक इंसान ने इनमें से किसी भी एक लड़की के साथ भी ज़ना कर दिया तो वो सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा बिलम बिन बावरा की कौम की तरफ से इसके इस मशवरे पर काम किया गया और फौरन एक खतरनाक जाल बिछाते हुए हजारों खूबसूरत लड़कियों को पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अलर्ट करने के बावजूद भी उनकी कौम के एक रईस इंसान ने इन्हीं में से एक लड़की से जिना कर लिया, जिसका नतीजा ये हुआ उनकी पूरी फौज में तागून नाम की एक खतरनाक बीमारी फैल गई। ये बीमारी कितनी ज्यादा खतरनाक थी, इस बात का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि इस बीमारी की वजह से सिर्फ एक घंटे के अंदर ही लगभग 70,000 लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी थी। बाकी बचे हुए चंद लोग भी अपनी फौज का ये बुरा हाल देखकर तितर बितर हो गए थे और आखिरकार इन सभी लोगों को बिना किसी कामयाबी के ही वापस लौटना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ बिलम बिन बावरा अपनी पूरी जिंदगी भर ये सजा झेलता रहा था, यानी पूरी जिंदगी भर इसकी जबान सीने तक लटकती रही थी। दोस्तों, आपको जानकर शायद हैरानी होगी
कि इन तमाम करतूतों के बावजूद भी बिलाम बिन बावरा को खुदा की तरफ से 3 चांसेस और दिए गए थे। यानी खुदा ने बिलाम को ये इजाज़त दी थी कि तुम 3 बार और दुआएं कर सकते हो, और ये तीनों दुआएं भी बिल्कुल वैसे ही बिना किसी रोक टोक के कबूल कर ली जाएंगी जैसे तुम्हारी पहले दुआएं कबूल कर ली जाती थी। मगर दोस्तों, बिलाम बिन बावरा अपने मिले हुए इन 3 चांसेस को भी सही तरह से इस्तेमाल ना कर सका, क्योंकि इस बार फिर से इसकी इसी बीवी ने इसको इस बात पर मजबूर किया कि तुम इन तीनों दुआओं में से पहली दुआ ये करो कि खुदा मुझको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बना दे, इतना ज़्यादा खूबसूरत कि जितनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की ना तो हमारी कौम में मौजूद हो और ना ही दूर दूर तक हमारी बस्ती में मौजूद हो। लिहाजा अपनी बीवी की जिद को पूरा करने के लिए बिलाम बिन बावरा ने पहली दुआ के तौर पर अपनी बीवी की खूबसूरती मांग ली, और नतीजे में इसकी बीवी को हद से ज़्यादा खूबसूरत भी बना दिया गया। मगर हुआ ये कि जैसे ही इसकी बीवी हद से ज़्यादा खूबसूरत हो गई तो उसकी बीवी ने इसको ही भाव देना बंद कर दिया और अपना ज़्यादातर वक्त इलाके में रहने वाले इन मर्दों को देने लगी कि जो बिलाम बिन बावरा से कम उम्र और खूबसूरत हुआ करते थे, जिसकी वजह से अब बिलाम बिन बावरा हद से ज़्यादा परेशान रहने लगा। इतना ही नहीं, एक दिन बिलाम बिन बावरा ने अपनी बीवी को एक गैर मर्द के साथ गलत काम करते हुए भी पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसे में अब बिलाम बिन बावरा ने अपनी बीवी को ये बददुआ दी कि तू फौरन कुत्ती की तरह बन जाए, और इस तरह इसकी बीवी की शक्ल कुत्ती की शक्ल में बदल गई। और इस तरह से अब बिलाम बिन बावरा की दूसरी दुआ का भी यूज हो चुका था, यानी बिलाम बिन बावरा के पास सिर्फ एक ही दुआ बची थी। दोस्तों, जब बिलाम बिन बावरा ने अपनी बीवी के खिलाफ बददुआ करते हुए इसकी शक्ल को एक कुत्ते की शक्ल में बदल दिया तो इलाके में रहने वाले लोग बिलाम बिन बावरा के बच्चों को चिढ़ाने लगे। जगह जगह पर बिलाम बिन बावरा के बच्चों से लोग कहा करते थे कि ये कुतिया की औलाद हैं। इतना ही नहीं, इनका और भी तरह से मजाक बनाया जाता था, जिसकी वजह से अब बिलाम के बच्चों ने इससे ये जिद की कि वो हमारी माँ को एक बार फिर से बिल्कुल वैसा ही करवा दें कि जैसा वो पहले हुआ करती थी। लिहाजा बिलाम बिन बावरा ने अपने बच्चों की जिद को मानते हुए एक बार फिर से अपनी बीवी के लिए दुआ की, और इस तरह से अब इसकी बीवी अपनी पुरानी शक्ल में वापस आ गई। मगर जाहिर है बिलाम बिन बावरा की अब ये तीसरी दुआ भी यूज हो चुकी थी, और इस तरह से बिलाम बिन बावरा ने अस्कर में मिले हुए अपने इन 3 चांसेस को भी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसी मजीद हिस्ट्रिकल वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ वाली घंटी को दबा दें। शुक्रिया।